Hello everyone, good morning. This is Riz. I welcome you all to my channel. And today we are on day 142, guys. Today the topic is the day is 142, okay, and the topic is why are you reading this book? Okay, so basically, guys, I'm talking about this book. You can look at the screen, you can look at my cursor, okay. How to talk so teens will listen, and listen so teens will talk. There is a reason if I'm reading this book, guys, okay, and we all have reasons for what we are reading, okay. Whatever book, whichever book we have been reading, always there have been reasons, okay. So today, for the first time ever, I have come up with such a topic wherein I'm giving you reasons of a book why I am reading it. Okay. So let us start. And in the similar manner, how I have said about my things, you can always talk about your book that you are reading. You should be able to talk about it, why you are reading. You should know, you should be aware of it. You should be aware of the reasons. Okay. You must speak to your own self, guys. Okay. So this is another way of practice English. Okay. At your end, guys. So let me start now. Topic: why are you reading this book? How to talk to teens so teens will listen, and listen so teens will talk. Number one, point number one, at this moment, I am busy reading a book named How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk. It's need of the hour. So basically reason is it's need of the hour. इसकी मुझे जरूरत है अभी इस टाइम पे मुझे इसकी जरूरत है. पॉइंट नंबर टू एंड द बुक बुक का मीनिंग क्या है गाइस कि आप बच्चों को कैसे सुने. टीन्स का मतलब है कि जो बच्चे 13 एज में है, 14 एज में, 15 एज में, 16 एज में, 17, 18 और 19. ओके, ये थोड़ा बच्चों का एक अलग माइंड चलता है इस टाइम पे. तो ये बुक पूरी उसी के बारे में है कि बच्चों का माइंड कैसे चेंज होता है, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चे. इनफैक्ट मैं सभी पेरेंट्स को रेकमेंड करूंगी दैट दे गो थ्रू दिस बुक. अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट किया है. I still have to go through all the chapters, and I'll try to recite you the story, guys. Okay, I'll try my level best. Okay, I'll see to it if I could do it for you guys. So let us continue with the book. Point number two. I am compelled to read this particular book as I am going through a tough phase due to my kids changing behavior. तो इसका रीजन है मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों ने मजबूर कर दिया. आई एम कंपेल्ड. ओके, मतलब काइंड ऑफ मजबूर कर दिया बच्चों ने ये बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, टफ फेज चल रहा है. बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज चल रहा है, वो लोग सुनते नहीं है मेरी बात को. ओके, सो दे हैव कंपेल्ड मी. ओके, आई एम कंपेल्ड टू रीड दिस बुक. Now, point number three, I am basically seeking the right solutions so that I can handle them calmly. तो अभी पॉइंट नंबर थ्री में क्या है गाइस, बेसिकली रीजन क्या है पढ़ने का, मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, बच्चों को हैंडल करने के लिए. नंबर फोर, आई एंड अप यूजिंग स्लर्स एंड हाई पिच्ड स्क्रीम्स विच आई फील इजंट गुड फॉर मी एज वेल एज फॉर किड्स. तो होता क्या है गाइस, वो लोग कुछ भी करते हैं, मैं उनको चिल्लाती हूँ, आई शाउट एट देम, मेरी वॉइस बहुत हाई हो जाती है वॉल्यूम, और गालियां यूज में यूज हो जाती है जो मैंने कभी लाइफ में यूज नहीं करी गालियां. ओके, तो विच आई फील, ओके, मुझे लगता है वो चीज अच्छी नहीं है, ना कि मेरे मेरे लिए भी नहीं और बच्चों के लिए भी नहीं. देन पॉइंट नंबर फाइव, later I regret and realize that I was wrong. Okay, my way of correcting them wasn't right at all. I must be aware of their age. They are still small to understand the difference in the wrong or right. तो फिर बाद में क्या होता है गाइस, रियलाइज होता है, आई फील बैड कि भाई नहीं, मैं गलत थी, मुझे राइट तरीके चूज करने चाहिए बच्चों को हैंडल करने के लिए. और उस उनकी एज भी मुझे लेके चलनी है, बिकॉज दे आर जस्ट बहुत स्मॉल है, दे आर टू स्मॉल राइट नाउ. माई डॉटर इज 7.5 नाउ, and my son has just entered his in 2 digit age. Okay, that is 10. तो टीन्स में नहीं है वो, पहले ही मतलब काफी अर्ली एज है अभी, लेकिन मुझे लगा मुझे प्रिपेयर करना है खुद को इवन आगे के लिए गाइस. तो ये बुक मैं लेकर आई. नाउ पॉइंट नंबर सिक्स, I thought deeply about the trigger points of my anger. Those were all related to kids. फिर मैंने ये भी सोचा, मतलब मैंने खुद को टाइम दिया, मैंने डीपली सोचा कि क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्यों मैं एंग्री होती हूँ, यू नो. तो दे वर ऑल रिलेटेड टू किड्स, वो बच्चों से ही रिलेटेड थे. Number seven, I realized that I get triggered when home is messy, things are scattered, kids' stuff lying here and there, kids' books lying all around me, and mostly when I feel unheard by kids, despite several reminders to them. तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो ट्रिगर पॉइंट है, मतलब ट्रिगर पॉइंट मतलब जिन चीजों से मेरा एंगर बढ़ता है या मैं एंग्री होती हूँ गाइस. ओके, तो वो क्यों क्या है, जब घर गंदा होता है, मैसी होता है, और जब चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, बच्चों के टॉयज चीजें इधर उधर पड़ी हैं, और बच्चों की बुक्स कोई इधर है, कोई टेबल पे है, कोई फ्लोर पे है,
एंड मोस्टली व्हेन आई फील अनहर्ड, और जब बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, सबसे बड़ी चीज जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मुझे लगता है मुझे सुना नहीं जा रहा है और बहुत सारे रिमाइंडर देने के बावजूद, ओके, देन द एंगर ट्रिगर्स. देन पॉइंट नंबर 8, I literally thought of changing my attitude towards them. They need to know the consequences of the things that they have been doing, but I need to be tricky enough to convince them. I was seeking guidance. Okay. तो मैंने बहुत कुछ सोचा गाइस. ओके, फिर मुझे ये भी लगा हो सकता है मेरा रॉन्ग एटीट्यूड है बच्चों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे चेंजेस हमें एज अ पेरेंट भी लाने चाहिए, बहुत सारे चेंजेस गाइस. तो मैंने सोचा इस बारे में, फिर मुझे लगा राइट तरीके होने चाहिए बच्चों को हैंडल करने के लिए. तो मैंने फिर ये मतलब डीप सोचा, फिर मैंने ये भी सोचा कि बच्चों को कन्विंस करना है तरीके से, अच्छे तरीके से. ओके, तो आई वाज सीकिंग गाइडेंस, आई वाज सीकिंग कि मुझे, मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसी चीज कि जिससे मेरे को हेल्प मिले बच्चों को हैंडल करने के लिए, राइट तरीके मिले मुझे बच्चों को हैंडल करने के लिए. पॉइंट नंबर 9, लकीली वंस व्हेन आई वाज आउट विद देम, तो एक बार मतलब किस्मत से बोलते हैं ना, जैसे लकीली मतलब किस्मत से, जब मैं एक बार बाहर थी उनके साथ, बच्चों के साथ, आई सॉ दिस बुक एट अ स्क्रैप डीलर्स शॉप. इस बुक को मैंने स्क्रैप डीलर की शॉप पे देखा. आई इंस्टेंटली ग्रैब्ड इट बाय पेइंग 50 रुपीज. मैंने फट से इसको ले लिया, एक ही झटके में इसको ले लिया 50 रुपया देके. स्क्रैप डीलर मीन्स गाइस जो भंगार वाले होते हैं, बॉम्बे में हम भंगार वाला बोलते हैं इनको. अभी आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो नहीं पता. तो स्क्रैप डीलर मतलब जो पुराना सामान लेते हैं और उस सामान को आगे बेचते हैं गाइस. पॉइंट नंबर 10, और आपके लिए भी अच्छा आइडिया है, कभी भी स्क्रैप डीलर से बुक खरीदो, उनके पास से बहुत सस्ते में मिल जाती है हमें. 50 रुपीज में मैंने इसको खरीदा है, तो आप अपने एरिया में ढूंढ सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उनके पास, कलेक्शन मिल जाता है गाइस, और बहुत ही सस्ते में. तो पॉइंट नंबर 10, सो फार आई हैव रेड जस्ट फर्स्ट चैप्टर. अभी तक मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है. आई एम शोइंग माई किड्स दैट आई एम डूइंग इट फॉर देम. बच्चों को मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस देम दैट मम्मा इज पुटिंग सम एफर्ट टू चेंज हर एटीट्यूड. मैं उनको दिखा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस देम कि भाई मम्मा इज पुटिंग एफर्ट्स टू फॉर देम, टू चेंज फॉर देम. एंड इन रिवर्स दे टू मस्ट इम्प्रूव देयर हैबिट्स. और मैं उनको ये भी दिखा रही हूँ कि रिवर्स में, एक्सचेंज में, उनको भी थोड़ा इम्प्रूव होना है, उनको भी अपनी आदतें सुधारनी है. Okay, guys, so these are my reasons why I am reading this book. I was really seeking guidance. I was really looking for some help to handle them rightly, correctly, properly, because they are kids after all, right? And they are very important part of our life, and we must treat them like a gift of God, as they truly are the gift, okay, for us. So we must always, and we as a parent must always change our attitude towards them. And that is how I got help from this book. So far I have read just one chapter, and I'll try to share the story with you guys. Okay, maybe in the next video I'll come up with it. So for now I'm done with this topic, guys. And if you are reading any book, you should know how to talk about it, give proper reasons, valid reasons. You can write down those points. If you don't have time to write down, you can simply talk mentally to yourself. You can stand in front of the mirror and talk to yourself. Okay, so fine then, guys, I'll take your leave here. Thank you for listening to me. Thank you for bearing with me. And I hope you are learning a little, guys. I hope you are progressing with me. And if you liked anything from this video, please put it in the comment. And if you have anything in mind, any topic in mind, put it in the comment. My next video will come on that topic, guys. Okay. Thank you for seeing me, and please do like my videos. Please do subscribe my channel, and please do share the channel with the people who you feel they really need help in English. Here I'm thanking you all, guys.